Hello students, today we will start new chapter of class 9 which is chapter number 2 polynomials. ठीक है, so it is your chapter number 2 in NCERT polynomials. ठीक है, तो first of all we should know what is a polynomial definition. So any algebraic expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on an xn. It is a polynomial in variable x. Here the variable is x, so it is a polynomial in variable x. ठीक है, so the points to remember are here a0, a1 and a2 they are constants. ठीक है, एंड दे टेक, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर. ठीक है, नाउ कम टू पावर ऑफ एक्स. हियर द पावर ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. पावर ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर. इसके अलावा अगर कोई पावर हुई तो डेट वॉन्ट बी अ पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, तो पावर ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, दैट विल बी और पोलिनोमियल. सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है एफ एक्स 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. इट इज अ polynomial in variable, polynomial in variable. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x. look here x x x single variable. here in this chapter we will study only single variable. ठीक है ना, so it will be written as fx. suppose it is a polynomial. look 3y square plus 7y plus 4. Here also it is a polynomial, but here the variable is y, so we will call it as polynomial in variable y. ठीक है, now we will see what we have studied already in class 8, like terms and coefficients. Take this polynomial 3y square plus 7y plus 4. तो इसमें टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स हैं, 3y square 7y and the last term is 4. it is a constant. now if someone asks what is the coefficient of y square, then coefficient of y square is 3. here if someone asks what is the coefficient of y, then we will say 7. if someone asks what is the constant term, then it will be 4. ठीक है, these are the basic fundamentals. so it means this polynomial contains 3 terms and this polynomial in x contains how many terms, look 1 2 3 and 4. so this polynomial contains 4 terms. now let us take few examples to better understand this, like 8y square plus 7y plus 3. first of all check whether it is a polynomial or not. तो उसको लिए क्या करते हैं, वे पावर्स ऑफ वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, y, वेरिएबल इज y. यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी, 2. हियर ऑल्सो इट इज 1. सो इज इट अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल इन x प्लस 1 अपॉन x. तो क्या ये पॉलिनोमियल है, देखते हैं. हियर इट कैन बी रिटन एज x प्लस x inverse. here the power of x is 1, but here it is minus 1. it is not a whole number, so it won't be a polynomial. ठीक है, क्यों polynomial है, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है. ठीक है ना, it should be non negative integer, but here it is a negative integer, so it won't be a polynomial. now let us take another example. let us take polynomial in x square plus 2 root x plus 1. इज इट अ पॉलिनोमियल, देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स की पावर हाफ प्लस 1. हियर वेरिएबल इज एक्स. ओके, नाउ द पावर ऑफ एक्स इज हियर 2. इट इज अ होल नंबर, यस इट इज अ होल नंबर.
नाउ हियर पावर ऑफ एक्स इज हाफ. इज इट अ होल नंबर? नो. सो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो, इट वोंट बी अ polynomial because power of x is not a whole number here. So that's why it is not a polynomial. Now we will study another concept, degree of a polynomial. What we will study? Degree of a polynomial. ये degree of polynomial होता क्या है? Highest power of variable in a polynomial is known as its degree. क्या होता है? Highest power of variable in a polynomial is known as its degree. जो वेरिएबल होता है ना उसकी हाईएस्ट पावर होती है, दैट विल बी अ डिग्री. जैसे लेट अस टेक दिस एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x. ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3. यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2. तो हाईएस्ट कितना होगा? 2 और 3 में से 3. सो डिग्री विल बी 3. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. नाउ लेट अस टेक अ वेरिएबल इन y, gy. इट इज 9y की पावर 4 प्लस 7y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर plus y plus 1. Here the variable is y. Now let us take a look at powers of y. Here it is 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4. So highest one is 4. So degree will be 4. ठीक है. Now let us take another example. Find the terms and coefficients. Find the terms and coefficients in polynomial fx equal to 3x cube plus 2x plus 1. Now here if we see this polynomial, there is no term of x square. ठीक है ना, यहाँ पे x स्क्वायर की कोई टर्म है क्या? यहाँ पे x क्यूब के बाद डायरेक्ट x आ रहा है, तो x स्क्वायर की कोई टर्म है क्या? नहीं है. तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. तो एक्स स्क्वायर को अब कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे? 3x क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x एंड 1. अब आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 3. अब आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0. आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का कोफिशिएंट कितना है? 2. और कांस्टेंट टर्म कितनी बेटा? 1. ठीक है, समझ में आ गया ना. इस पूरे पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स, 3x स्क्वायर, 2x एंड 1. और आपसे अगर कोफिशिएंट का पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इन दिस वे यू विल सॉल्व इट. नाउ व्हाट विल कम टू, विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है. नाउ अ पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ways. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. So classification of polynomials is done on the basis of 2 things. First on the basis of degree and second on the basis of terms. ठीक है, on the basis of terms. So on the basis of degree they will be classified as constant polynomials, linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials. We will study each one of them one by one. ठीक है. On the basis of terms we will classify them as monomials, binomials एंड ट्राइनोमियल्स. ठीक है, अब सबको एक एक करके हम देखते हैं.
ओके, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, पहला कौन सा था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, डिग्री 0। जैसे एग्जांपल 5। लुक, 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स की पावर 0। किस एक्स की पावर 0 इज 1, तो 5 इंटू 1 विल बी 1। सो हियर द डिग्री ऑफ एक्स इज पावर ऑफ एक्स इज 0। सो डिग्री ऑफ एक्स इज 0। ठीक है, एक्स की पावर कितनी यहाँ पे? 0, तो डिग्री कितनी होगी? 0। ठीक है, नाउ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पे आता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये सिर्फ बी बचेगा, मीन्स कांस्टेंट, तो इट विल बिकम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ए बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जांपल लो लीनियर पॉलिनोमियल के। 2x प्लस 3, 5x, यहाँ पे x की पावर कितनी? 1, यहाँ पे भी कितनी? 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे? जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, डिग्री कितनी होगी बेटा? 2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। Look, the standard form of linear polynomial is ax plus b. Here a is coefficient of x and b is constant term. ठीक है, here a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term. ठीक है, तो here also a can't be 0. अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ bx plus c, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी? 2। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम इज 2, सो डिग्री इज 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री 3। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दिस इज हाउ पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ वी विल क्लासिफाई पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। फर्स्ट वाज मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है बेटा? जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, कंटेन्स ओनली वन टर्म। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। एग्जाम्पल 5x, 3x स्क्वायर, 7x क्यूब, ये तीनों क्या है? मोनोमियल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी बेटा? 2 टर्म्स। ठीक है, कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 7 एंड x क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये कितनी टर्म होगी? एक 5x होगी, एक 7 होगी, तो 2 टर्म्स। हियर ऑल्सो वन टर्म इज x क्यूब एंड अनदर इज 1, सो दीज आर 2 टर्म्स।
So that's why it is a binomial. This is also binomial and this is also binomial. Third one is trinomial. तो ट्राइनोमियल आपको अंदाजा हो गया होगा कितनी टर्म्स होंगी. इट कंटेन्स ओनली 3 टर्म. ठीक है, आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग इट. ओके, तो एग्जाम्पल 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1. हियर वी विल लुक फॉर ओनली नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट डिग्री. यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, डिग्री नहीं देखेंगे. ठीक है ना. देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 and 3. दैट्स वाई इट इज अ ट्राइनोमियल. हियर डिग्री इज 4, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्री, वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ टर्म्स. इफ देर आर 3 टर्म्स देन इट विल बी अ ट्राइनोमियल. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1. हियर ऑल्सो इट इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड. नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. How to find value of a polynomial. This we will understand with the help of example. ठीक है. Suppose a polynomial is given to you, fx is equal to 3x square plus 2x plus 4. Now you have to find its value 8x is equal to 1. Now you are given a polynomial this, and you have to find value of polynomial at x is equal to 1. So you will write f of 1. So how we will find value? In place of x we will write 1. X square means 1 square plus 2. In place of x we will write 1 plus 4. 3, 1 square is 1. 1 into 3 is 3. 2 into 1 is 2 plus 4. So this is 9. So this is how we calculate value of a polynomial. ठीक है, समझ में आ गया. एक और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. फाइंड वैल्यू ऑफ polynomial at x is equal to 1. ठीक है. Here also you have to find value of polynomial at x is equal to 1. So in place of x we will write 1. 1 cube minus 6. X square means 1 square plus 11. In place of x 1 minus 6. 1 cube is 1 minus 6 plus 11 minus 6. This is also plus 11. So it will become plus 12. माइनस 6 और माइनस 6 कितना होगा, माइनस 12. तो ये कितना हो जाएगा, 0. तो f ऑफ 1 कितना आ गया, 0. अच्छा, नाउ ठीक है, f ऑफ 1 इज 0. दिस इज हाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. नाउ वी विल डिस्कस 0 और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. 0 क्या होता है. ठीक है, हियर when we put x is equal to 1 the polynomial becomes 0. the value of polynomial is 0. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 is root of a given polynomial. ठीक है, वो वैल्यू जिसको पुट करने पर polynomial की वैल्यू 0 हो जाती है, those are known as zeros of polynomial. ठीक है, 0 क्या होता है, जिनको पुट करने पर polynomial की वैल्यू 0 हो जाती है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, fx is equal to x minus 3. इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. जब हम f ऑफ 3 निकालते हैं, x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 3 इज 0. तो हम कह सकते हैं 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल. समझ में आ रहा है कुछ. जैसे एक और पॉलिनोमियल ले लीजिए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. अब आप फाइंड कर लिए f ऑफ 2. अब देखिए क्या 2 इसका 0 है, चेक करते हैं. अगर वैल्यूज पॉलिनोमियल की 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. लेट अस चेक. 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6. 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 स्क्वायर इज 4. 4 इंटू 6 इज 24 प्लस 11 इंटू 2 22 माइनस 6 प्लस 22 प्लस 8 30 माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30. तो ये कितना हो गया, 0. तो f ऑफ 2 कितना आ गया बेटा,
0, 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज हाउ we'll say whether given value is 0 or not. ठीक है, now we'll find 0 of linear polynomial. ठीक है, finding 0 of linear polynomial. First of all we should know what is the standard form of 0 polynomial. So that is fx equal to ax plus b. नाउ जब भी आपसे बोला जाए कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो, लीनियर पॉलिनोमियल का, जब किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देना है जीरो के. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट दैट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो. हियर पॉलिनोमियल इज ax plus b. ठीक है, so equate this ax plus b equal to 0. So this will become ax is equal to minus b, and this is become x is equal to minus b by a. Here b is constant term, minus sign is there already, constant term, upon a is coefficient of x, coefficient of x. So this is how you will find 0 of a linear polynomial directly. ठीक है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. इट विल बी माइनस बी बाई ए. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए. सपोज यू आर गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x plus 3. फाइंड इट्स जीरो. ठीक है, तो आप इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसका द सिंपलेस्ट मेथड इज इक्वेट द पॉलिनोमियल टू जीरो. So 2x plus 3 equal to 0. So 2x will be equal to minus 3. This is a simple solving the linear equation we have already studied in class 8. So x is equal to minus 3 by t. This is 0 of a polynomial. This is method 1. And method 2 is directly we can calculate using this formula, x is equal to minus b by a. X is equal to minus sign, b is constant. Here constant is 3 upon coefficient of x. Coefficient of x is 2. Directly in one step we can tell the answer, that is minus 3 by 2. ठीक है, now we will do some questions. Question: show that x is equal to 1 is a जीरो और रूट. जीरो बोलो या रूट बोलो, बोथ आर सेम. ठीक है ना, जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6. व्हाट यू हैव टू शो, यू हैव टू शो दैट x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे 1 पे. ठीक है, सब यू हैव गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6. आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. तो चेक कैसे करते हैं, वी विल कैलकुलेट f ऑफ 1. इफ इट इज जीरो देन वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6. This will become 2 minus 3 plus 7 minus 6. 7 plus 2 is 9. Minus 3 minus 6 is also minus 9. So it is 0. So we can say that hence f of 1 कितना है, 0. Means x is equal to 1 is 0 of given polynomial. ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, next question. If x is equal to 4 by 3, if x is equal to 4 by 3 is a zero of polynomial fx is equal to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20, then find the value of
k, ठीक है ना. सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? दिस fx इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20. नाउ इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 4/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, जब हम x की जगह 4/3 पुट करेंगे वैल्यू, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. ठीक है, तो x की जगह कितना पुट कर दो? 4/3. 6 x की जगह 4/3 क्यूब माइनस 11 x की जगह 4/3 स्क्वायर प्लस k, x इज 4/3 minus 20. It will be equal to 0. Now this is the linear equation in one variable. Here variable is k. So we can easily calculate this value by solving this. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. 6 इंटू 4 क्यूब इज 64, 3 क्यूब इज 27 माइनस 11 इंटू 16 अपॉन 9. 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0. कैंसल, 3 की टेबल से कैंसिल करो 2 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स. सो इट विल बिकम 128/9 माइनस 176/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज करो, इस वेरिएबल को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ. ठीक है, तो 4k/3 इक्वल टू 20 प्लस 176/9. ये माइनस का है तो RHS में जाएगा तो प्लस, और दिस इज पॉजिटिव सो इट विल बिकम नेगेटिव. ठीक है, दिस इज यू शुड नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 8. ठीक है ना, यू शुड नो दिस. नाउ 4k/3 इक्वल टू LCM इज 9, सो 9 टाइम्स आएगा तो इट इज 20 इंटू 9 प्लस 176 माइनस 128. So 4k/3 equal to 20 into 9 is 180. 176 minus 128 is plus 48 upon 9. 4k/3 equal to, this will become 228 upon 9. ठीक है, now 3 की टेबल में 7 and 6 times, it is 3 times. ठीक है, 3 and 3 will be cancelled. So क्या बचा? 4k equal to 76. So k equal to 76 upon 4. 4 की टेबल में 1 times, ये 19 times. So this will give you k equal to 19. ठीक है, this completes today's lecture. ठीक है, in next lecture we will see another topic. ठीक है, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. ठीक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.